Hi student, कैसे हो आप? I hope you all are fine. So student, in previous video we discussed about IPSC naming and we have done some basic rules like numbering or make parents chain and select side group and also do numbering in parents chain, and I especially inform you don't do numbering in case of side group because we do numbering only parents chain, not in side group. If we try to do numbering in side group, then it is very special case. It is higher level concept, not for class 10. So we not discuss about this concept. Today we discuss about IPSC naming. In IPSC naming we need some root words. Root words especially used for carbon. It is based on carbon number. Suppose in any compound if one carbon present in parent chain, then we use root word meth. If two carbon present in carbon chain, then we use root word eth. 3 carbon prop, 4 carbon but, 5 carbon pent, 6 carbon hex, 7 carbon sept or hept, and 8 carbon oct, 9 carbon none, 10 carbon dec. So after 10, in our syllabus not possible compound more than 10 carbon compound, but if we try to write up to carbon, then we can write. So you can use this table. Suppose for 10 I write a deck DECK, but for 11 undeck UNDECK, 12 dudeck, 13 trideck, 14 tetradeck. So you can use this concept, okay? And just after for carbon 11, sorry, not carbon 11, carbon 20. If in any carbon compound 20 carbon present in parent chain, then we use icose. And if 30 carbon, then tricant, 40 carbon, then tetracant, 50 carbon, then pentacant. So you can use this concept in this sequence. And after this 100 carbon, if 100 carbon present in carbon chain, then you write hect, HECT. So this is remembering thing. Actually when we do practice, then no need of remembering. So just after I start some classification of carbon on the basis of degree of carbon and hydrogen. So it is very important because some IPSC naming only basic name writing book and also questions, so we have not able to decode the compound. So by using this concept we try to decode the compound. So watch this video and maintain yourself, okay? May I erase this because it is remembering things. So again I take a new topic. So our new heading, classification of carbon on the basis carbon and hydrogen. Classification of carbon and hydrogen on the basis of its डिग्री. भाई साहब बुखार नापने की डिग्री होती है ना, उसी डिग्री के हिसाब से हम इसको भी डिफाइन करेंगे. बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा अपने को. बने रहिए वीडियो में, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है. अब देखिए भाई साहब, इसमें जो डिग्री के हिसाब से हमारा जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, जैसे कार्बन में डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें तो 4 डिग्री होती है. जो कार्बन की डिग्री 1 होगी, 1 डिग्री कार्बन, दूसरा होगा 2 डिग्री कार्बन, तीसरा होगा 3 डिग्री कार्बन, चौथा होगा 4 डिग्री कार्बन. अब 5 डिग्री कार्बन क्यों नहीं होता? तो आपको पता होगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4. तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 ही बॉन्ड बना सकता है. अब देखो जो 1 डिग्री कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन. ठीक है. सेकेंड को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन. एंड नेक्स्ट टर्टियरी कार्बन. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा. इसको क्या बोलेंगे? क्वाटनरी कार्बन. ठीक है. अब हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन में भी ऐसे ही होते हैं. हाइड्रोजन की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जो होगी हमारी, ठीक है, इसमें देखिए होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन,
and 3 degree hydrogen, but 4 degree hydrogen not possible. अब कहोगे क्यों? उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा क्यों। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट करिए, हम आपको बताते हैं एक करके 1 डिग्री कार्बन क्या होता है। एक्चुअली हमारी जो पहली हेडिंग है ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे? अगर कोई कार्बन एक कार्बन से या एक एल्किल ग्रुप से, एक साइड एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। जैसे कोई एक कार्बन था पर्टिकुलर, इसमें सब तरफ से क्या लगा था, हाइड्रोजन, और बाकी इधर क्या लगा था, एल्किल ग्रुप, एनी कार्बन चेन। एल्किल ग्रुप का मतलब होता है एनी कार्बन चेन। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो अब इस कार्बन की जो डिग्री होगी, कितने एल्किल ग्रुप लगा, एक, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, फॉर एग्जाम्पल तो हम ले रहे हैं CH3। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कार्बन, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन, सब हो गया मेंटेन। देखिएगा, किसी एक कार्बन की बात करें, चलिए इस कार्बन की बात करते हैं। ये कितनी तरफ कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक साइड, तो कितने डिग्री कार्बन हो गया, ये 1 डिग्री। ये हाइड्रोजन सब क्या हो गए होंगे, सब के सब क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखिए एक ही तरफ तो एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, बाकी सब हाइड्रोजन से जुड़े हैं। कितने हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। ये कितना होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब ये नहीं कि पर्टिकुलर हाइड्रोजन ही 1 डिग्री, सारे हाइड्रोजन कितने, 1 डिग्री, और सारे कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे कैसे हम कार्बन की डिग्री निकालते हैं। चलिए हमारी जो हेडिंग बी आने वाली है इसको हम हटा देते हैं, आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलो, हमारी जो हेडिंग बी है 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए भी होगा। ये 1 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन साथ में हेडिंग लिखते हैं, एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि साथ में चलेगा, अच्छा रहेगा, 2 बार पढ़ने से क्या फायदा हो। 2 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन। हमारी नई हेडिंग है 2 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब कि सेकेंडरी कार्बन एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो भाई साहब इसी तरीके से ऐसा कार्बन जो दो तरफ एल्किल ग्रुप से अटैच होगा वो होगा हमारा सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। फॉर एग्जांपल आइए देख लेते हैं, एक कार्बन था, इसमें एल्किल ग्रुप 2 लगे थे। ठीक है, और इसमें क्या लगा था, 2 हाइड्रोजन लगा था। तो अब ये देखिए इधर भी एल्किल ग्रुप लगा था इधर, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, जितने एल्किल ग्रुप उतने डिग्री, 2 डिग्री कार्बन। इस हाइड्रोजन की डिग्री कितनी हुई, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से लगा होगा तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल ले लेते इस पर आधारित। चलिए इसमें तो बहुत चीजें दिखने वाली हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद फिर कार्बन हो गया, फिर हमारा हो गया कार्बन, और इधर से हो गया कार्बन, फिर हो गया हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, इधर कर लीजिए हाइड्रोजन। चलिए हम चेक करते हैं इसमें कितने डिग्री के कार्बन अवेलेबल हैं। इस कार्बन की बात करते हैं, कितना कार्बन इससे लगा, सिर्फ एक तरफ से, इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री कार्बन। चलिए इस कार्बन की बात करते हैं, एक इधर से लगा एक इधर से, तो कितनी डिग्री इसकी हो जाएगी, 2 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन की बात करें तो कितने कार्बन लगे हैं, सिर्फ सिंगल कार्बन लगा इधर और उधर कहीं नहीं लगा, तो 1 डिग्री कार्बन। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ये सब के सब 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये क्या होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो अगर ये 2 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन लगा था तो ये क्या होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये कितने डिग्री हाइड्रोजन होगा, देख लीजिए बताइए, 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ये भी हमारा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो आपको समझ में आ गया कैसे डिग्री निकालते हैं। ये हमारा सेकेंडरी कार्बन था, बाकी क्या थे, सब प्राइमरी कार्बन थे।
अगली हेडिंग हमारी जो सी आती है, 3 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब टर्शियरी कार्बन एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। तो आप पूरा चाहे लिखिएगा चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, पर समझ सकते हैं। तो आप जान सकते हैं ऐसा कार्बन, नोट्स में आपको सारा नोट्स पूरा डिटेल मिलेगा, आप नोट्स से ही नोट्स बनाइएगा, ये समझने के लिए है। तो ऐसा कार्बन जो 3 तरफ से एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो और एक तरफ क्या लगा हो, हाइड्रोजन, तो उसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी कार्बन। और उस कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, टर्शियरी हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल ये एल्किल ग्रुप हो गया, इधर भी एल्किल ग्रुप हो गया, इधर भी एल्किल ग्रुप लग गया, ठीक है। इधर क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री कार्बन। ये हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं CH3। अब हम शॉर्ट फॉर्म में करते खटाखट, अब उतना डिटेल नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे। ये देखिए इसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री हाइड्रोजन। इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री कार्बन। ये बाकी क्या होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। आप ओपन स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हैं। आते हैं क्वाटरनरी पर, मतलब 4 डिग्री। भाई साहब डी हमारा ऑप्शन होगा क्या, 4 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन। ब्रेकर में लिखिए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। क्यों, तो उसके लिए हम इसे हटाते हैं, फिर बताते हैं आपको क्यों पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि भाई जब कोई कार्बन 4 तरफ से एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा तो वो बनाएगा क्वाटरनरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। तो भाई ये कार्बन था, ये कितने डिग्री है, 4 डिग्री कार्बन है। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, 1 2 3 4। तो क्या हाइड्रोजन हवा में लटकेगा, नहीं ना, अब हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नियोपेंटेन इसका कॉमन नाम होता है। अभी तक हम लोग आईपीएससी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपको नाम पे ज़्यादा चर्चा करने के लिए नहीं बोलेंगे। आईपीएससी नाम के अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसा ही हमारा कॉन्सेप्ट जैसे ही ख़त्म होगा हम बात करेंगे फिर आपके नेम के बारे में, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है। तो इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, चलिए करिएगा, अगर आप कर पाते तो ठीक है, अगर करेंगे तो आप ग्रुप में उसका आंसर जरूर लिख के भेजिएगा, फिर कॉपी में भी कीजिएगा, ठीक है। उसको लिखने के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, आप फटाफट नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। चल हम कह रहे हैं फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड, ठीक है। मतलब एक कंपाउंड हम आपको दे रहे हैं, ये आपका क्लास वर्क क्वेश्चन है, आप घर पे करना, आपको क्लास में ही करना है। आप अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप अभी कर डालिए। और देखिएगा इसमें एक कंपाउंड दे रहे हैं हम आपको, इसमें आपको क्या करना है, डिग्री फाइंड करनी है सबकी। जितने भी कार्बन हैं कितने डिग्री के हैं, जितने भी हाइड्रोजन हैं कितने डिग्री के हैं, सबकी डिग्री आपको निकालनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको सारी डिग्री निकाल करके अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, अगर आप निकाल लेते तो अपने ग्रुप में भी भेजेंगे। इसके बाद हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है ना, अब हम आते हैं आईपीएससी नेमिंग पे, कैसे नाम लिखते हैं कंपाउंड का। तो चलिए आ जाते हैं उस पर भी आज। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, थोड़ा सा पढ़ाना है, तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें इसको हटाना होगा, अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप उसको सॉल्व करने के बाद हमसे मिलिए। फिर रूल फॉर नेमिंग ऑफ मेन चैन एंड साइड ग्रुप पे आते हैं, हमारी नई हेडिंग है रूल फॉर
साइड ग्रुप। अब हम आपको जो सिखाने वाले हैं कि जो नेमिंग करते हैं उनके लिए जो रूल होता है मेन चेन और साइड ग्रुप का, ये आपकी हेडिंग है, वो कैसे करते हैं। तो पहले हम एक रूल लिखते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे रूट वर्ड ऑफ साइड ग्रुप विद लोकेंट। हमने लोकेंट बताया जो नंबर होता है, विद लोकेंट। फिर आप लगाएंगे कामा, रूट वर्ड ऑफ सॉरी विद लोकेंट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, प्लस YLE, उसके बाद रूट वर्ड ऑफ मेन चेन प्लस एन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, इन अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और आइन लगाएंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड, YNE, आइन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो। ठीक है, ये हमारा रूल है, आपको ध्यान नहीं रखना है। हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि अपने आप ये रूल हमारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस रूल को अप्लाई करते हैं। हमने कहा कि जो रूट वर्ड होता है ऑफ साइड ग्रुप, जैसे कि अगर कोई कंपाउंड दिया गया उसमें साइड ग्रुप है तो उसका सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रूट वर्ड ऑफ साइड ग्रुप विथ लोकेंट। लोकेंट मतलब वो साइड ग्रुप मेन चेन में जो नंबरिंग की गई है वो किस कार्बन पर लगा है। ठीक है, दूसरी बात, उसका जब हम सब कुछ लिख लेंगे फिर क्या लगा देंगे, YL। ठीक है, जैसे लिख दिया मिथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, तो उसमें ये चीज हम लगा देंगे, YLE। और उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस मतलब कामा लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, ऐसा हमने लिखा है। तो रूट वर्ड ऑफ मेन चेन, जो हमारी मेन चेन होगी उसका जो रूट वर्ड होगा उसको लिखेंगे। फिर रूट वर्ड के बाद एन, इन, आइन, अगर वो एल्केन है तो एन लगेगा, एल्कीन है तो इन लगेगा, एल्काइन है तो आइन लगेगा। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल अब से आपकी नेमिंग शुरू हो गई है, जैसा CH4। इसमें भाई साहब ना तो कोई साइड ग्रुप ना कुछ है, कितने कार्बन का चैन, एक, तो क्या साइड ग्रुप है, नहीं, तो ये रूल हमारा नहीं लगेगा। क्या लगेगा, रूट वर्ड ऑफ मेन चैन। एक कार्बन के लिए अभी हमने जो टेबल बनाए थे आपने देखा रूट वर्ड क्या था, मेथ। सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, IPAC, मेथेन। चलिए एक और करते हैं, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। देखते कोई साइड ग्रुप है, नहीं, कहीं पे ब्रांचिंग है, नहीं, तो हम इस पे क्या करेंगे, सीधा नंबरिंग करेंगे 1 2। अगर मेन चेन का रूट वर्ड, दो कार्बन मेन चेन में, तो रूट वर्ड क्या होगा, चार्ट से फटाफट चेक करिए, तो क्या होगा, एथ, सिंगल बॉन्ड देन एन, इथेन। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक और कर लेते हैं, CH3 CH3। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा रूल क्या था, लंबी चैन 1 2 3 1 2 3, कोई एक चैन बना लीजिए, चाहे इधर से चाहे इधर से। फिर नंबरिंग कर दीजिए, किधर से करेंगे, 1 2 1 2, दोनों तरफ से रूट साइड वाला ग्रुप क्या है, 2 पे आ रहा है, तो किधर से भी कर ले, दोनों तरफ से क्या है, सही है। अब हमने क्या बोला, अगर साइड ग्रुप है तो क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, इसका नाम पहले लिखते हैं, नाम इसका साइड ग्रुप का लोकेंट के साथ में, तो लोकेंट यहाँ पे क्या है, 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अब रूट वर्ड ऑफ साइड ग्रुप, यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, मेथ। ठीक है, मेथ। फिर आप क्या लगा देंगे, YLE। हमने कहा था ना रूट वर्ड ऑफ साइड ग्रुप विथ लोकेंट, तो लोकेंट 2 था, हमने पहले उसको लिखा, फिर रूट वर्ड एक कार्बन था, मेथ लिखा, फिर हमने क्या बोला, तो YLE लगा देना, तो आपने क्या लिखा, 2 मिथाइल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कामा लगा देंगे,
कामा लगाने के बाद रूट वर्ड ऑफ मेन चेन, तो मेन चेन इसी को बोलते हैं ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो आप देखिएगा, मेन चेन यही है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेंट चेन भी बोलते हैं। और ये क्या था, हमारा साइड ग्रुप था, उसमें सब कुछ बताया गया आपको। तो देखिए 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन। चार्ट से चेक कीजिए फटाफट, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रो। ठीक है, अब देखिए कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सब जगह सिंगल दिख रहा है, तो रूट वर्ड देखिए, रूट वर्ड ऑफ मेन चेन हो गया प्रो। एन इन आइन में से कोई एक लगेगा तो सिंगल बॉन्ड क्या लगेगा, एन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, CH3 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 CH3। इसका जो कॉमन नेम होता है नियो पेंटेन, लेकिन इसका आईपीएसी नाम भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए 1 2 3 कार्बन की चेन, 1 2 3, कोई एक 3 कार्बन की चेन आप बना लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से क्या आ रहा है, इक्वल। तो ये आपका क्या हो गया, पैरेंट चेन या मेन चेन। ये क्या हो गया, साइड ग्रुप। अब आप नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 2 पे साइड ग्रुप लगा, 1 2 2 पे, तो किधर से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से क्या है, सही। अब हमारा रूल क्या कहता है, रूट वर्ड ऑफ साइड ग्रुप विथ लोकेंट। तो किस लोकेंट पे क्या क्या साइड ग्रुप लगा, 2 पे ये भी लगा, 2 पे ये भी, तो हम लिखेंगे 2 2, मतलब 2 पे एक ही साइड ग्रुप 2 बार लगा ना, 2 2 डाई, 2 डाई। इसके लिए रूट वर्ड क्या होता है, मैथ। साइड ग्रुप के नाम में क्या लगाते हैं, YLA, 2 डाई मिथाइल। इतने का नाम हुआ, देखो 2 इसका लोकेंट, 2 इसका लोकेंट, 2 बार है तो डाई, 3 बार होता तो ट्राई, 4 बार होता तो टेट्रा। सेम ग्रुप अगर एक से ज्यादा बार है तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा लगा सकते हैं। यहाँ बाई भी लगता है, कामा। रूट वर्ड ऑफ मेन चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन पे क्या लगता है, प्रो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल, तो क्या लगेगा, एन। अब आपको समझ में आने लगा होगा, ये इसका कॉमन रूल था और हमने जनरल एग्जांपल लिया। अब थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके लेते हैं, उसके लिए हम इसको हटाते हैं। अब फटाफट नोट कर लीजिए, कुछ और वैरायटी के लेते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए कोई साइड ग्रुप दिख रहा नहीं, अगर साइड ग्रुप नहीं दिख रहा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मेन चेन हो जाएगी। अगर ये मेन चेन है तो ये हमारे में नंबरिंग किधर से करेंगे, हमने बोला था कि अगर मेन चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड, साइड ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जो पास में आए। तो देखते हैं इधर से अगर करते हैं 1 2 3 पर आ रहा, इधर से करते हैं 1 2 3 4, इधर से 2 पे आ रहा, तो कौन सा सही है, ये वाला। तो ये वाली नंबरिंग गलत थी। अब देखिए कोई साइड ग्रुप नहीं है तो ये वाला रूल तो लगेगा नहीं, यहाँ से हम लोग बाहर हैं। उस पर चलते, रूट वर्ड ऑफ मेन चेन। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और चलिए इसके बाद हमने कहा था कि अगर मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे इन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ब्यूट इन। ठीक है, ये आपका नाम हो गया। इस तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आता तो आप हमसे पूछिएगा। चलिए कॉल कर लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। चलिए इसमें भी कोई साइड ग्रुप नहीं है, सीधा नंबरिंग करते हैं 1 2 3। अब आप समझ गए होंगे नंबरिंग किधर से होगी। रूट वर्ड ऑफ मेन चेन कितना है, 3, तो प्रोप हो गया, और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा तो क्या हो जाएगा, YNE। तो आप ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको नहीं आता तो फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो आप उसमें कमेंट में लिखे रहेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे, जिसमें साइड ग्रुप लगे होंगे ऐसे कंपाउंड का आईपीएसी नेमिंग, जैसे कि अल्कोहल का करेंगे, एल्डिहाइड का करेंगे, कीटोन का करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे, और हेलो फंक्शनल ग्रुप का भी करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना।